दीप्ति से दैदीप्यमान शिक्षकगण एवं प्रकाश कुंज विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। ये गौरवशाली शिक्षा से परिपूर्ण परंपरा का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। आज का दिन हमारे संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन शिक्षा के आकाश में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ है जो निरंतर अपने प्रकाश से भारतीय जनमानस को आलोकित कर रहा है। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुमति और आज्ञा लेना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ावें, और इसी क्रम में मैं मोनिका मैम से आग्रह करता हूँ कि प्राचार्य महोदय से को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करें। बारिक सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे संगठन की ओर से प्राप्त प्रतिज्ञा का वाचन करावें और उसकी पुष्टि करें। माननीय बारिक सर। Thank you, dear sir. It's really a proud moment for me to be here and read out the pledge to all of you. On the occasion of KVS Foundation Day, and with the permission of our beloved Principal Sir, I request everyone present here to join with me for the pledge. And I am going to read out the pledge in English. So here it is, the pledge. Please read in pledge, everyone. We, the members of Kendriya Vidyalaya Sangathan, solemnly pledge to work selflessly towards making India a strong and prosperous nation. We shall discharge our duties consciously to take our country to greater heights of sparkling achievements. We pledge to inculcate patriotism as well as cultural and ethical values among our countrymen through our services and actions. On KVS Foundation Day, today we commit ourselves with dedication and devotion towards the betterment and development of our country and countrymen. Jai Hind. Thank you. Have a nice day. अब मैं श्रीमती अरुणा मैम से आग्रह करता हूँ कि वो कार्यक्रम के लिए तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय
इतना मनोहर, इतना अच्छा गीत आपने हम सबको सुनाया और हम लोगों के अंदर एक नई उमंग और नया जोश भर दिया है। अब मैं माननीय मृत्युंजय सर से आग्रह करता हूँ कि आज के दिन की विशेषता और आज के दिन का महत्व हम सबके समक्ष पालन करें। Thank you, Abhilash sir. Good morning to everyone. Honorable Principal sir, dear colleagues and beloved children. It's very auspicious day for all of us. We are the member of Kendriya Vidyalaya Sangathan. On this day, Kendriya Vidyalaya Sangathan was founded on 15 December 1963. In beginning, Kendriya Vidyalaya was known as Central School. Later, it was renamed as Kendriya Vidyalaya. In beginning, after opening of the Army Public School, Kendriya Vidyalaya Sangathan extended its services to all central government employees. As far as administration is concerned, in Kendriya Vidyalaya Sangathan, there are 25 regions, and each region is headed by Deputy Commissioner, and at top in headquarters, Commissioner is the head of our Kendriya Vidyalaya Sangathan. Honorable Ministry of HRD is the chairman of Kendriya Vidyalaya Sangathan, and at school level, principals are head of schools. Kendriya Vidyalaya Sangathan providing a very good platform to students to nurture their talent and their advancement. There are many programs is being run by Kendriya Vidyalaya Sangathan for holistic development of students. Kendriya Vidyalaya Sangathan is not only providing its services in India but also abroad. There are 3 Kendriya Vidyalayas in foreign countries: Iran, Russia and Nepal. Kendriya Vidyalaya Moscow in Russia, Kendriya Vidyalaya Tehran in Iran, and Kendriya Vidyalaya Kathmandu in Nepal. Kendriya Vidyalaya Sangathan not letting any stone unturned to develop the skill of students, and every year Kendriya Vidyalaya Sangathan is touching new heights in providing the results of class 10th and 12th. And teachers are also hardworking, who are putting their soul and body for development of students. And last, I would like to say we should be proud of being the member of Kendriya Vidyalaya Sangathan, and wherever we go, we should be look like a Kenyan. Thank you. धन्यवाद सर। सच में आपने गागर में सागर भरने की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। हम सबको नहीं आपने कितनी ज़्यादा जानकारी दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी शुभ अवसर हो, कोई भी बड़ा कार्य होता है, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति यही रही है कि हम अपने बड़ों का मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे आशीर्वचन लेते हैं, उनके जो है आशीर्वचनों से हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में मैं प्राचार्य महोदय जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपने स्नेहाभिषिक्त आशीर्वचनों से हम सबको सिक्त करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय शिक्षक गुरु, प्यारे बच्चों, बहुत ही शुभ अवसर है। जिस तरह से आप अपना जन्मदिन घर पर मनाते होंगे तो कितनी खुशी होती होगी आपको। सेम वही चीज़ केंद्रीय विद्यालय के लिए है। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जन्मदिन मना रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, और जिस परिवार के अंग हम लोग हैं उस संस्था का हम लोग जन्मदिन, स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े उत्साह और उमंग का विषय है। बड़े धूमधाम से KVS हेडक्वार्टर में भी यह स्थापना दिवस मनाया जाता है, सभी रीजनल ऑफिस में भी मनाया जाता है। विद्यालयों में कोरोना का समय नहीं होता तो और भी बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते थे। पूर्व में ऐसा हम करते थे कि ये स्थापना दिवस हम लोग के एनुअल फंक्शन के आसपास में कहीं पड़ता था,
और उसी बीच में हम लोग इसको मना दिया करते थे। और 2-3 साल के अलग से हम लोग मना रहे हैं, बहुत सादे समारोह में हम लोग कर रहे हैं, बट इसकी जो गरिमा है उस गरिमा को हम सबको समझने की ज़रूरत है। और सब चीज़ तो खैर सब लोग बता ही दिया, आप जान ही रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई जो है वो अपने आप में जो ये सबसे अनोखा इस मामले में है कि आप लोगों में से 90% गार्जियन का कंसर्न इनकम से जरूर है। आप लोगों में से रेयर कोई गार्जियन होगा जिनके लिए मनी कोई मैटर नहीं होगा, नहीं तो 98% गार्जियन के लिए मनी इज ए ग्रेट मैटर। समझ गए? कोई गार्जियन ऐसा होगा जो इस ठंडे में अपना रजाई नहीं बनवाता होगा, आपका स्कूल ड्रेस खरीद करके देता होगा। ऐसे भी गार्जियन हम लोगों के बीच में होंगे, ठीक है? तो आपके जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स के लिए पैसा बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अधिक लोग किसान हैं। किसान की आमदनी बहुत ही सीमित है, नगण्य है, नहीं के बराबर है। हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, उसकी सारी दुख दर्द हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से अपने जितने भी गार्जियन हैं उसमें 95% से ज़्यादा लोग किसान हैं। किसान को अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना कितना कठिन होता है ये लगभग हम लोगों में से 90% लोग जान रहे होंगे। 5% जिनके गार्जियन नौकरी में रहे होंगे शायद उनको आवाज़ नहीं होगा। यही चीज़ हम बता रहे थे कि एक्चुअली ये संस्था तो बनी सरकारी कर्मचारी के लिए बनी, लेकिन बाद में सबके लिए ओपन किया गया। ये ओपन करने का कितना बड़ा बेनिफिट है, यही बेनिफिट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अभी CPS है, CCS है छपरा में, जिसको सभी लोग जानते हैं। इंटरमीडिएट करने का 2 सत्र का कितना खर्च है बस खाली आप वहां से जाकर के नोट कर लीजिए, और आपको यहाँ कितना खर्च लगता है ये नोट कर लीजिए। आपको KVS की गरिमा आपको समझ में आ जाएगी। अब नहीं तो जब आप पास होंगे तो आप इस दोनों को कंपैरिजन कर लीजिएगा, आप देखिएगा कितना डैम चीप एजुकेशन आप KVS में ले रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के साथ। क्वालिटी का तो ऐसा मतलब चैलेंज है हम लोगों का कि यदि CPS या CCS से 5 अच्छे टीचर को पकड़ करके ले आइए, वो भी शायद अपने थोड़े कमजोर टीचर से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन इतने सस्ते दर पर सरकार आपके पेरेंट्स को प्रोवाइड कर दे रही है, दैट इज ए ग्रेट जॉब ऑफ KVS। और मैं मानता हूं हम लोग भी इसमें रोजी रोटी कर रहे हैं, हम लोग का परिवार का भरण पोषण होता है इस नौकरी से। हम वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू KVS। उसी तरह से आप इस संस्था में आप अपनी शिक्षा ले रहे हैं, आप अपने गार्जियन के अनावश्यक खर्च को बचा रहे हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू योर KVS। दिस इज माई टीचिंग फॉर दिस डे। आप चाह रहे हैं आप इस KVS के प्रतिष्ठा में एक कड़ी जोड़ने का काम करें, बस यही आपसे आप इसको डिफेम करने का प्रयास करें। आप अपने अनुशासन से, आप अपने पढ़ाई से, आप अपने परिवार को सुशोभित करिए, देश को सुशोभित करिए। KVS की जो ये कड़ी है इस कड़ी को लंबा करने का प्रयास करिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करिए। यही हम अपने मित्रों के बीच में अच्छी बात करें, संस्था के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने जीवन को संवारें, KVS को संवारें। यही मेरा आप सबों से आह्वान है। धन्यवाद सर, आपके कथन, आपका मार्गदर्शन सदैव अंधकार में प्रकाश की भांति हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस का कई उद्देश्य हैं जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन जिस उद्देश्य से स्थापित की गई है, इनकी जिस तरह से अलग अलग जो है रचनाएँ हुई है, केंद्रीय विद्यालय स्वर्णिम गौरव लाएगा। वाकई में ये हर दिन नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, नए तरह से आप लोगों को ऊंचाई
कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरे के उपकार करने से बड़ा पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं होता। ठीक इसी को चरितार्थ करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने एक आदर्श वाक्य की रचना की। कहा जाता है कि शिक्षार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, यानी कहने का मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ प्रवेश कीजिए और सेवा करने के लिए, किसको सेवा करने के लिए, अदर देन मी, यानी अपने को छोड़ करके बाकी जो भी है उनकी सेवा करने के लिए आपको यहाँ से प्रस्थान करना है। तो प्यारे बच्चों, एक जिस उद्देश्य से एक केंद्रीय विद्यालय संगठन का आदर्श वक्त बनाया गया है, अगर ये आपको जो है, अगर आप जितना दिन भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं इसी मनोभाव में उसका एडमिशन होगा। सोचिए कि अपनी बेटी को केवी में पढ़ा करके अब कितनी खुश में, कितनी उनके आशीर्वाद आज मिला। हम लोग व्हाट्सएप पर देखें, मैंने कहने का मतलब है बच्चे कि आप भी इस चीज़ को पा सकते हैं। आप में भी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कोई बना बनाया आता है, सब खुद बनाना है। खुद आपकी मम्मी पापा बनाएंगे, खुद आपको शिक्षक बनाएंगे, कुछ आपके दोस्त बनाएंगे। आपको हर जगह क्या करना है, एकदम कहीं भी जाइए शिक्षार्थ प्रवेश कीजिए, सेवार्थ प्रस्थान कीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके अगर आप करते हैं तो हम समझते हैं सब आपकी जो है जीवन एकदम बिल्कुल जो है खुशमय होगा। और इसी के साथ हम सभी अपने शिक्षक बंधु, कर्मचारी जो भी हैं, छात्र, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापन भी करता हूँ। हालांकि आचार्य महोदय की आज्ञा से कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, मंगल शुभकामनाएं देता हूँ और अब आप लोग घर के लिए प्रस्थान करें। टीचर्स आप बच्चे एक एक करके निकल जाइए।